बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Samin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope everybody is excited. We're going to talk about business. And by the way, हमको इंग्लिश में बात करना है कि उर्दू में बात करना है? Do you talk in English or Urdu or mix? Come on, can I have that in the comment section? Do you want in English or it's Urdu or it's going to be mixed? What do you prefer? Urdu, okay. Few people. डालें और कोई कौन सी जबान में चाहते हैं मिक्स ओके ऑल ओके ओके كيف اللغة العربية هذا أحسن Arabic is best طيب all right fine so let's start inshallah business we are going to talk about the success qualities of businessmen all right so yeah, before we go further, just let me get an idea whom I'm talking to. Is anyone entrepreneur over here? Please write in the comment section. यहाँ पर कोई businessman है, already कोई business कर रहा है, entrepreneur है, तो just write I am a businessman. I mean, you just write an I. Just simple, you know, एक letter लिखना है आपको. Yes, I'm already an entrepreneur. Okay, okay, Buran bhai. Anyone else? Okay, so I'm assuming others are on job, right? तो आप शिफ्ट होना चाहते हैं जॉब से बिजनेस साइड में all right great so my next question is just to understand my audience I'm assuming majority are from Kuwait obviously so just write your city down you're from Kuwait yes Kuwait है तो K लिख दीजिए या Kuwait लिख दें and if you're from somewhere else write your city just to understand so whom I'm addressing to because you know the Gulf dynamics are different I was in the Gulf so I know the dynamics are different if you're planning to shift from there or वहां से जो ना business करना चाह रहे हैं so all right okay Hyderabad okay good Chennai all right who else so let's assume majority from Kuwait okay चले आगे बढ़ते हैं next quick question is just write your qualification so that you know we can better connect मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ मैं आपको ज्यादा जो है ना हम synchronize कर सकते हैं आपको you will get better examples you're an engineer you're a doctor or maybe you're you know whatever sales manager whoever it is I mean you're a student IT engineer okay very good MBA okay very good want to start business in India that's cool that is majority of the you know the people NRIs staying in Gulf वही ख्वाहिश रहती है इंडिया में जाके बिजनेस स्टार्ट करेंगे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल निकल जाते हैं बाजू ऑलराइट अल्लाह ताला आसान करे चले ठीक है फाइन ग्रेट ओके so we have like engineers and MBAs and fine चले आगे बढ़ते हैं ऑलराइट तो अब हम कुछ क्वालिटीज पे जो है ना बात करते हैं इंशाल्लाह और इसके अंदर जो है ना व्हाट आई विल बी टेकिंग इज कि दीज आर दी क्वालिटीज दीज जो की एलिमेंट्स जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए existing entrepreneur or willing going to be an entrepreneur wanna be an entrepreneur ये क्वालिटीज आपको होना चाहिए तो इसको हम with practical experiences से बात करेंगे because I'll just quickly tell you my profile जैसे बात है कि I am an engineer then I did my MBA और मैं सऊदी में जॉब करता था I did job in Saudi Arabia for 5 years and then I came back to India and alhamdulillah since last 11 years I'm into business running my own IT company alhamdulillah उसके साथ जो है मैं एक life coach motivational speaker और एक corporate trainer भी alhamdulillah so I will share you the journey inshallah कि कैसे step by step जो है ना ये process होता है in the meantime we'll take some of the skill sets which are required और more or less हमारे पास 12 points हैं successful entrepreneurs के लिए जो qualities जो है होना चाहिए और उसके साथ साथ जो है हम और कुछ बोनस पॉइंट्स भी लेंगे और इन बिटवीन उसके अंदर जो है हम स्टोरीज भी लेंगे कि प्रैक्टिकली किस तरीके से आप उसको जो है अचीव कर सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट इज यू नीड टू बी अ सेल्फ स्टार्टर तो सेल्फ स्टार्टर के तो माने आप समझते हैं नो रॉकेट साइंस कि अपने आप से जो है इनिशिएटिव लेना कोई चीज को जो है स्टार्ट करना तो इफ यू प्लान टू बिकम बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर
आप एक बिजनेस चलाना चाहते हैं तो यू नीड टू बी अ सेल्फ स्टार्टर. तो a quick question over here is, how many people over here are self starters? Are you a self starter in your life? आप जो ना इनिशिएटिव लेते हैं, या फिर कोई बॉस के जोर पे, बीवी के जोर पे जो है यू वर्क अंडर सम काइंड ऑफ प्रेशर, या कोई जब आपको बोलते हैं, कोई डंडा लेके ठहरते हैं, या कोई पीपल पुश यू, देन यू टेक एक्शन, और यू आर वन हु टेक एक्शन बाय योरसेल्फ. So are you a self starter? Because self starter is a very important quality. All right. So if you're a self starter, just to write, yes, I am a self, or I am a self starter. All right. So okay, we have self starters. Buran bhai, very good. Proactive, huh? Buran bhai. Okay, Dawood, very good. Anyone else? Who else? Come on. Let's quickly mutaha. Okay. All right. Okay, we have some self starters here. So 50 में से at least you got 7 answers, 6-7 answers जो लोग self starters हैं. All right, and the rest of the people, you need to take action. So there's a quick quote. Be a self starter. Do it now. When you don't know how to do something, start. Beware of the paralysis of analysis. Be a person of action. अरे टेक एक्शन. जब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, बिजनेस कैसा करें, टेक एक्शन. स्टार्ट टेकिंग एक्शन. वहां से आपको मालूम होगा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क. यू विल स्टार्ट गेटिंग एक्सपीरियंस. अब उसी तरीके से जब सेल्फ स्टार्टर की बात आती है, स्टार्टिंग अ बिजनेस इज योर ओन डिसीजन. मार्क दिस वर्ड्स. ये आपका अपना डिसीजन है. और फिर उसमें जो ना कोई डेडलाइन नहीं है. आपको खुद अपना डिसीजन लेना है, आपको अपनी जो ना एक डेट डिसाइड करना है. I had when I was working in Saudi, there were people जो अभी जैसा मैं आपको बताया कि NRI सिखाए जो गल्फ में रहते हैं, यूजुअली यूएस वगैरह सेटल्ड है. यूएस में जो बस वही कंटिन्यू करना है, उनको इंडिया आने की ख्वाहिश नहीं है. बट गल्फ वगैरह में रहता है कि मेजोरिटी, नॉट ऑल ऑफ कोर्स, कि भाई इंडिया जाना, अपना बिजनेस स्टार्ट करना. आई सीन पीपल जो 15 साल 20 साल से जो ना अभी भी मैं सुनता हूँ, जो मैं आके भी जो है तकरीबन 10 साल हो रहा है, लेकिन आई स्टिल हियर पीपल दे से, जो हमारे साथ कोलीग्स थे, कि भाई इंडिया जाके बिजनेस करना है. You get the point कि you have to take a decision. बिजनेस में आपको कोई आके आपको सुपर इम्पोज करने वाला नहीं. you are the one who have to take. You are the CEO, you are the boss, you are the worker, you are the employee, you are the engineer. आप सब कुछ हैं, especially in the beginning. So that is your decision. And I would say कि why this is really important, because जब आप ऑलरेडी जॉब पे रहते हैं तो वहां से निकल के आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जो है ना चैलेंजिंग होता है. यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन में रह के हम अचीव करना चाहते हैं, बट all the great things happen outside the comfort zone. They don't happen inside the comfort zone. And I'll tell you my own experience. Alhamdulillah, tawfiq min Allah. I was working in Saudi in 2009 and 10. I was in an MNC, multinational company, one of the biggest companies in the world actually. और at that time, उस जमाने में, I was very young at the time, or I was even unmarried, by the way. I was making more than 1 lakh rupees per month, and that was a very good salary for a fresher. And सऊदी के हिसाब से 10,000 रियाल से ज्यादा जो है ना तनख्वाह at that time till. So it was a very good and a very big figure. But alhamdulillah, summa alhamdulillah, I decided कि मुझे जाके business start करना ही है. Took a date, decided, and then finally resigned from the company. It was challenging. It was really difficult. एक well settled job रहते हुए, अरे भाई जाके जो ना इंडिया में अपना business start करना है. You have to decide. You have to take action. You have to be self starter. So here is the action item for you now. I hope everybody has a pen and paper और आप उसको लिख रहे हैं, because whenever you're writing, you're actually imprinting it in your mind. So write it down. It will make a lot of difference. बहुत से लोग जो ना just video देख लेते हैं, वाह 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 अच्छा था, बस that's it. उसके ऊपर जो ना settled रहते हैं. But when you're writing it down, you actually make a commitment कि जो ना ये चीज मैं कर रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ. All right. So write this down. Make a commitment now. This is your action item. What's the commitment? That you have to decide a date. एक डेट आपको डिसाइड करना है. It can be in 2022, maybe 2025, maybe 2021. In this particular month, ये particular year, I'm going to resign my job and start my own setup in my home country, or maybe even wherever I am, maybe in Kuwait also. Not an issue. ये लेकिन आपको डिसीजन लेना होगा. At least just write it down. हो सकता है वो डेट आगे बढ़े, एक्सटेंशन हो उसका,
बट इफ यू डोंट इवन राइट इट डाउन, मतलब आप फर्स्ट स्टेप लिखने से ही अगर घबरा रहे हैं, हम अभी नहीं होता भाई, एक बीवी 4 बच्चे हैं मेरे, कहां से होएगा, इट विल नेवर हैपन, forget about it. मतलब it's a kind of waste attending, the online entrepreneurship and kind of seminars, because alhamdulillah मैं जो फील्ड में हूँ, apart from IT, we talk about efficiency, productivity, getting things done, getting results, life coaching, motivation training. Alhamdulillah, I've got trained under the world's number one trainer, Tony Robbins, India's number one trainer, Vivek Bindra, Jack Canfield, कई trainers के अंदर मैं training लिया सुनो, because you have to be an action taker. You can't be a procrastinator. हाँ देखेंगे, बात की बात है, वो होता क्या? No, you have to take action now. So if you have made a commitment, just give a thumbs up or say yes, you have made a commitment. Yes in all caps. Yes, you have made a commitment now. अब हो सकता है वो 2022 हो, 2025 हो, 2030 हो, but make a commitment. Let's see how it goes. Maybe you can extend the date later. All right. So let's commit. Come on. Noman has already committed. Very good. Riazuddin, very good. MashaAllah. Come on. I want more responses. We have 52 over here. और response चाहिए हमको. Come on. Very good. Very good. Come on, Daud. Come on. Very good. हाँ. Is it necessary to resign start? उसकी तरफ हम बाद में आएंगे. जरूरी नहीं है. We'll discuss that, inshallah, if you get time. Okay, very good. 2022. I am in Kuwait, finally. Very good. MashaAllah. Awesome, guys. चले, माशाल्लाह, very good, या खान, बहुत जबरदस्त. Everybody is like committing now. और month भी आना important है, okay? You just can't write 2021. 2022 लिखेंगे आप, बोलेंगे जनवरी, अभी तो फरवरी, अभी तो मार्च है ना. The month should be there, the date should be there. Yes, you heard it right. All right. So आगे बढ़ते हैं. So what was the first point out of the 12 points जो हम लेने वाले? What is the first point? Come on, anyone? Let's see. याद है या फिर नहीं, फिर अपना WhatsApp चल रहा है साइड में. Well, yeah, self-starter, Riazuddin, fantastic. Please give a big hand to Riazuddin. All right, so the first point is be a self-starter. आप business करने जा रहे हैं, be a self-starter. All right, we go to the point number 2, and that is being passionate. जो काम आप कर रहे हैं उसके बारे में आप absolutely passionate रहना. Business नहीं, इसमें बहुत पैसा है, उठ के जो ना करने आ रहे हैं. No, you should be passionate what you're doing. वो आपके जुनून रहना, वो आपके अंदर जो ना धुन रहना, ये काम मुझे करना है. I love it. I'm passionate about it. So the quick question is, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको अपना टैलेंट मालूम है? Do you know your passion, your talent? If yes, then give right I, or even write your passion. What's your passion? Maybe a speaker, a writer, or whatever it is, a business. I mean, आपका passion, talent क्या है, उसको identify करना जरूरी है. If you don't know that, you're gone. Okay, no man, you're confused. No problem. हम आएंगे उसकी तरफ. All right, there's a quote. If you do what you love, you'll never work a day in your life. If you do what you love, you'll never work a day in your life. So you should be passionate about what you're doing, else you will leave it soon. आप बहुत जल्द जो ना वो चीज को छोड़ देंगे, और उसमें जो ना आप एक्सेल भी नहीं करेंगे, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से भी उसमें आप परफॉर्म नहीं करेंगे. I'll share my own story. I'm an engineer by mistake. I was in Saudi. मेरा बचपन सऊदी में गुजरा, और वाले साहब डॉक्टर थे, और मैं देखता था कि उनके जो ना बहुत ही चैलेंजिंग ड्यूटीज है. तो 12 घंटे काम कर रहे हैं, कभी 14 घंटे काम कर रहे हैं. एवरीबडी इज लाइक, कहीं बाहर भी निकले तो कहीं पार्टी में गए, कोई लोग पूछ रहे हैं भाई मुझे ये बीमारी है, लाइक आई फेल्ट नहीं यार, ये तो अपने से नहीं हो पाएगा. ओके, ऑलराइट. सो आई सेड नो नो नो, मुझे तो डॉक्टर नहीं बनना है. तो फिर क्या, इंडिया में द इंडियन माइंडसेट इज लाइक, इंडिया के बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर बनना है, थोड़ा अगर मेडिसिन में सीट नहीं मिले तो इंजीनियर बनना है. तो जब अपने को मेडिसिन नहीं करना है, देन आई वाज अ गुड स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं बोला चलो मेरे को तो इंजीनियर ही बनना है. एंड आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग 4 साल हो गए. केम बैक टू सऊदी फॉर जॉब इन 2006. कई अच्छे कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज मिले. सीमेंस, आई इवन गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन अरामको जो कॉन्ट्रैक्टर. कई बड़े बड़े कंपनी में अपॉर्चुनिटीज मिले, बट that was purely technical work on instrumentation and PLCs and SCADA, oil and gas. I mean, guys, come on, आप लोग मालूम है. I don't like, ये मेरे सर के ऊपर से जाता था. And what I used to do कि बैठ के जो मेरे आजू बाजू कोलीग्स रहते थे, उनके साथ जो ना मेरा बातचीत हंसी मजाक चलता था. I was a good communicator.
उनसे जो है ना बातचीत करना, उनकी बायोग्राफीज निकालना, डिस्कशन करना, लेकिन काम में नो, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आता था। एंड आई वाज लाइक यार मैं इतना अच्छा जॉब है लेकिन आई एम नॉट एबल टू डू इट बिकॉज आई वाज नॉट पैशनेट, दैट वाज नॉट माय टैलेंट। And mid of my job life, once I faced an interview in pure instrumentation company, biomedical instrumentation. तो वहां पर एक बंदा था चेन्नई का, एंड ही आस्क्ड मी क्वेश्चन। जब ये डिस्कशन हो रहा था, आई टोल्ड लाइक आई वांट टू गो इन सेल्स। तो बोले भाई तुम इंजीनियर है, तुमको सेल्स में क्या करना है? बोले मेरे को इंटरेस्ट नहीं है टेक्निकल में। तो मुझे आपको इंटरेस्ट नहीं तो फिर आप टेक्निकल करे क्यों? आई वाज लाइक सरप्राइज्ड, एंड देन ही टोल्ड मी लाइक व्हाई डिड यू बिकम एन इंजीनियर? दैट वाज लाइक अ शॉक। एक दिल में एरो मारे जैसे, हाँ मैं इंजीनियरिंग करा क्यों से भी। एंड देन फाइनली आई डिड एमबीए। आई रियलाइज कि मेरा पैशन जो है ना सेल्स करना है, और यू नो बातचीत करना, कन्विंस करना, सेल्स करना। सो लाइक आई डिड एमबीए। और मैं एमबीए करते हुए सोचा कि सेल्स तो मैंने ऑलरेडी चलाई थी मुझे, लेकिन बिजनेस करना है। आई वांट टू मैनेज पीपल, पीपल मैनेज करना, उनको गाइड करना, मोटिवेट करना। सो आई टोल्ड आई विल डू एन एमबीए इन एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह डिस्टेंस से जो है फिर एमबीए करने की अपॉर्चुनिटी मिली, एंड फाइनली आई रिजाइन, केम बैक टू इंडिया एंड स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। एंड दैट इज वेयर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैशन जो है ना काम आता है। Passion about talking to people, closing the deals, doing sales, managing people. That is what I literally enjoy, alhamdulillah. और जब बिजनेस में जब वापस भी आया, तो जैसे इब्तिदा में बात है कि जो मेरे भाई हैं, बिजनेस पार्टनर है हमजा, तो ही इज अ प्योरली टेक्निकल गाय बाय द वे। एंड ही वाज लाइक, ही सेड जब मैं स्टार्टिंग बिजनेस में, हमको भी तो मालूम नहीं था, वी आर लाइक वेरी यंग। तो ही सेड कि हमारे अपनी आईटी कंपनी, यू स्टार्ट डूइंग टेक्निकल वर्क एंड टोल्ड मी क्रिएट अ वेबसाइट। इतनी मुश्किल से जो है ना मैं वेबसाइट को जो है ना बनाया। Then I realized, no, this is not my piece of cake. But I realized my passion is sales, my passion is management. Oh, I'll stick to this. Summa alhamdulillah, that is where we complement each other. So the point is, the thumb rule, the conclusion is, do what you're passionate about. तो उससे पहले अब आप बोलेंगे भाई अभी नोमान भी बताएगा मुझे पैशन ही नहीं मालूम, अपना टैलेंट क्या नहीं मालूम। So here you get two links. I'll just share it with you. Is there is one is 16personalities.com और एक वाला है, अभी मैं आपको दोनों लिंक शेयर करूं। 16personalities.com and another one is tonyrobbins.com/disc. ये दो वेबसाइट्स पे आप जाके अपने पैशन में, दोस आर रियली लॉन्ग फॉर्म्स, लंबे हैं लेकिन आप भरेंगे, आपको अपनी पर्सनालिटी मालूम होगी, आपको अपना पैशन, अपना टैलेंट मालूम होगा। Then you can monetize it. You can make it as your business, inshallah, bismillah. All right. So that's the action item for today. If you don't know your passion or talent, now is the time. Fill these forms after this online webinar, and then inshallah bismillah you'll get an idea that आपका क्या चीज है, आपका talent है। All right, so what is the second point? What is the second point? Come on, anyone? First one was self starter. So what is the second quality of an entrepreneur? Passionate. Very good. Passionate about your work, about your job, even if you're in job or whatever it is, and then monetize it, make it as your business. All right, so we go to now step number the third point, and that is calculated risk. So it's a quick survey. कितने लोग यहाँ पर risk takers हैं? Come on, write an I. You are a risk taker. Quickly write an I. I'm a risk taker. आप risk लेने जो ना डरते नहीं. And this is a very important quality. अब मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि how this is very very related to an entrepreneurs. You know ये जब 12 पॉइंट्स के थ्रू हम गुजरेंगे, यू विल रियलाइज कि इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर माइंड और नॉट। इफ नॉट, क्रिएट योर माइंड, क्रिएट एन एंटरप्रेन्योर माइंड बिफोर यू जंप टू एंटरप्रेन्योरशिप। ऑलराइट, सो यस और नो? नो। ओके, वेरी गुड। बीइंग फेयर, आई मीन बी वेरी फ्रैंक। यू शुड रियलाइज योरसेल्फ, आप है क्या, किस टाइप की पर्सनालिटी है। देन यू नो वी कैन गो फॉर द चेंज प्रोसेस। लेकिन आप स्टार्टिंग में जो है ना फिक्टिशियस बोलेंगे, खुशफहमी में रह के हाँ मैं रिस्क टेकर हूँ, लेकिन जो है ना कोई रिस्क ही नहीं ले रहे हैं, तो I mean, it's not an entrepreneur mind. All right. तो आगे बढ़ते हैं। Only those who will risk going too far can possibly find out how far it is possible to go. जब आप रिस्क लेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कितना आगे जो ना आप जिंदगी में जा सकते हैं, कितना ज्यादा जो ना आपके अंदर पोटेंशियल है। So be a calculated risk taker, but have a safety net. Write down these words. Have a safety net. Take a risk, लेकिन सेफ्टी नेट होना चाहिए। जैसे सर्कस वगैरह में रहते हैं, फुल हाइट पे जा रहे हैं, नीचे जो है एक सेफ्टी नेट है, गिरे तो भी वो नेट के ऊपर जो है गिरते हैं। ऑलराइट, एक
बात जो जहन में रखना है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी एक्चुअली रिस्क पे हैं। मालूम आप, एनी टाइम द इकोनॉमी कैन गो इन डिप्रेशन, इट हैपेंड इन 2009 बाय द वे। तो कंपनी से आप फायर हो जा सकते हैं, ये बॉस कैन फायर यू नो, कंपनी डूब जा सकती है। यानी बेसिकली द रिस्क, जॉब करने में रिस्क है, बिजनेस करने में रिस्क है, कोई नई सर्विस स्टार्ट करने में रिस्क है, नया प्रोडक्ट बनाने में रिस्क है, इनफैक्ट जीने में रिस्क है। इवन इफ आर अलाइव यू रिस्क डाइंग द होल लाइफ, यानी पूरी जिंदगी जो ना रखे। प्लेन में आप फ्लाई कर रहे हैं, देयर इज अ रिस्क, एक्सीडेंट हो सकता है खुदा ना खास्ता, क्रैश हो सकता है फ्लाइट, फेलियर, मशीन फेलियर हो सकता है। व्हेन यू ड्राइविंग अ कार देयर इज अ रिस्क, एवरीवेयर देयर इज अ रिस्क, रिस्क हर जगह है। You have to take calculated risk. So if you want to become an entrepreneur, रिस्क टेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। जैसे बात बताया मैं आपको कि मेरा खुद अपने जब सऊदी में जॉब था, एंड आई वाज मेकिंग लाइक मोर देन 1 लाख 1.5 लाख, एंड आई वाज लीविंग द जॉब, पीपल लिटरली टोल्ड मी, भाई इतना वेल सेटल्ड जॉब छोड़ के तुम जा रहे हैं, यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क। बाद लोग बोले तुम तो नाशुक्री कर रहे हो, यहाँ तक भी जो है ना बात बता दी। बट दिस इज द पॉइंट, रिस्क रहेंगे बट यू हैव टू हैव द सेफ्टी नेट। सो व्हाट वाज द सेफ्टी नेट? एटलीस्ट 1.5 ईयर तक या 2 ईयर का आपके पास जो है ना कैश होना चाहिए, ये बैंक बैलेंस होना चाहिए, जिससे जो है ना आपका सर्वाइवल हो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड दैट। 1 ईयर का जो है सर्वाइवल के लिए, एंड आई हैड सम इन्वेस्टमेंट्स आल्सो, 1 ईयर का सर्वाइवल कैपिटल आई हैड, कि जस्ट इन केस हालात ऐसे बने कि बिजनेस नहीं चले, सो वेरी मच पॉसिबिलिटी कि देयर वोंट बी एनी इनकम, बट आई हैव बैंक बैलेंस एट हैंड, है ना, तो वहां पे पैसे हैं जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो द एक्शन आइटम इज बिकम अ कैलकुलेटेड रिस्क टेकर। और इसके लिए जो है ना मैं आपको एक टास्क दूंगा, वो है कि नेक्स्ट 1 वीक के अंदर, राइट दिस डाउन एंड डू दिस एक्शन आइटम्स, यू विल एंजॉय इट एक्चुअली। नेक्स्ट 1 वीक के अंदर आपको हर रोज एक ऐसा काम करना है जिसके बारे में आपको जो है ना कुछ एक डर होता था। मे बी यू हैव नेवर डन पब्लिक स्पीकिंग, कोई एक 10-15 लोगों के सामने जाके आप कुछ पब्लिक स्पीकिंग कर दें, आप बोले कि आई वांट टू से अ फ्यू वर्ड्स टू यू ऑल, 10-15 मिनट, डू थिंग्स व्हिच यू हैव फियर्ड टिल नाउ, एवरी डे एक, भले वो छोटा भी टास्क हो सकता है, लेकिन जिसके बारे में आपके अंदर इनहिबिशन से एक फियर था कि भाई वो करूं नहीं करूं, यू नो, एक काइंड ऑफ एप्रीहेंशन से, बट डू इट नाउ। ऑलराइट, सो आई होप यू हैव रिटन इट डाउन, committed. All right, so what was the third point? What was the third point? What was the third quality? Come on, anyone? Yes, calculated risk. ठीक है, calculated risk. We, willing to fail. तो अभी जैसा बात आई कि अब सवाल आया, ओके, इफ यू हैव क्वेश्चंस आप डालते जाएं साथ में। अभी एक सवाल ये है कि हाउ टू डिफाइन सेफ्टी नेट, जैसा मैं आपको बताया कि कैपिटल होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, कॉन्टीजेंसी प्लान, if things don't work out your way, so what will be the backup plan? Give an example of calculated risk, जैसा मैं अभी बात बताया आपको कि when I came back to India, 1 ईयर का जो है ना बैंक बैलेंस हमारे पास था। और अगर अब जो मैं टास्क बता रहा हूँ नेक्स्ट 1 वीक के अंदर जो करना है, वो एक समथिंग विच हैव फियर्ड, आप जैसा बिजनेस करने से अक्सर लोग क्यों रुकते हैं, व्हाट इज द वन थिंग टू स्टॉप पीपल फ्रॉम डूइंग एनीथिंग एक्चुअली, दैट इज फियर, फियर ऑफ फेलियर, या जो है फियर, वो डर रहता है, नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, मेरा कैसा होगा, बीवी बच्चों का गुजारा कैसा होगा, दैट फियर इज देयर। वो फियर को निकालना है, टू ओवरकम दैट फियर यू हैव टू फेस इट। फियर का एक ही इलाज है, फेस इट। व्हेन यू फेस इट द फियर्स विल गो। जितना आप फियर से जो ना डरेंगे, फियर आपको उतना डराते जाएगा। जब आप फियर को डराएंगे तो फियर वैनिश हो जाएगा। हैज एनीवन सीन फियर? किसी ने जो है ना डर को देखा है? उसका कलर क्या रहता, उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है? नोबडी हैज सीन फियर। It's a virtual thing. It's there in the mind. You just feel it. You think it, you perceive it, you feel it. सेम चीज है, कोई दूसरा नहीं डर रहा लेकिन आप डर रहे हैं, बिकॉज इट्स अबाउट योर परसेप्शन रिगार्डिंग दैट इवेंट और दैट पर्सन और दैट थिंग।
तो उस तरीके से once you start facing it, it will just vanish. It will just vanish. Fear doesn't exist. You create the fear. We are the one. I mean, the person is the one who actually creates the fear. I hope it's making sense. All right. चले आगे बढ़ते हैं. We'll take बाद में और फिर क्वेश्चंस लेंगे हम इंशाल्लाह. जैसे in case if I miss them, आप उसको फिर से rewrite करें last में. Because a few more points, a lot of points actually we need to cover. We started a bit late also, by the way. The fourth point is discipline. So discipline is doing what you know needs to be done, you know, even if you don't want to do it. Even if you don't want to do it, दिल नहीं बोल रहा, फिर भी जो है ना आप कर रहे हैं. That is discipline. So, and many people fail over here. You know, जब आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, जब आप अपनी कंपनी चला रहे हैं, you are the boss, you are the CEO. You set the timings. आपको टाइमिंग सेट करना है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना है. आपके घर वाले कॉल करेंगे, बेवक्त पे किसी का जो ना कॉल आ जाएगा, कोई रिलेटिव्स कॉल करेंगे, पीपल माइट टर्न अप इनटू योर ऑफिस, और यू नो देयर विल बी फैमिली इवेंट्स, देयर विल बी मैरिजेस, और पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड बिकॉज यू आर इन बिजनेस. ये चीजें होते रहेंगे, but you have to have the discipline. You have to set those timings. That was the mistake which we made in the beginning. We didn't had any timings, you know. Sunday भी काम में आ जा रहे हैं, Monday कुछ पर्सनल काम कर ले रहे हैं, ऑफिस टाइम में जो है कुछ घरेलू काम कर ले रहे हैं. It was totally, you know, going hayway, unplanned, unsystematic, total indiscipline. But then we realized that this is not going to work this way. फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज की जो है टाइमिंग सेट हुई, ऑफिस टाइमिंग सेट हुआ, स्टार्ट टाइम सेट हुआ, एंड टाइम सेट हुआ, यू नो, वो छुट्टी कब है, वीकेंड्स कब हैं, व्हाट आर द हॉलीडेज, जब चीजों को सेट किया गया, then the things streamlined. So you need to create the discipline in yourself. अपनी पर्सनालिटी में डिसिप्लिन क्रिएट करना है, अपनी फैमिली लाइफ में डिसिप्लिन, अपने बिजनेस में जो है डिसिप्लिन क्रिएट करना है. अदरवाइज आप अगर जो है हेवे हैं, इफ यू आर इनडिसिप्लिन और अनडिसिप्लिन, the same effect will have on the team. आपके टीम के ऊपर, एम्प्लॉइज के ऊपर जो है वो इफेक्ट जाएगा उसका. So you have to be disciplined. So the action item for this point is create your daily timetable to start disciplining yourself. अभी शायद बिजनेस में नहीं है, but you plan to go it इंशाल्लाह very soon. So अभी से जो है ना डिसिप्लिन को एक मिजाज बनाए रखना. Create a habit of discipline. So write it down. This is the action item for now. All right. So the fifth point is, what was the fourth point? Anyone quickly? What's the fourth point? Discipline. All right. Very good. बहुत ही गौर से सुन रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह. Very good, guys. Okay. D. No man. That's great, huh? All right. The fifth one is self-confidence. तो एक तो हम लिए कि रिस्क टेकिंग और कैलकुलेटेड रिस्क टेकर, और दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस. समवॉट करीब करीब है. सो हाउ मेनी पीपल ओवर हियर आर एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्फिडेंट? कम ऑन, राइट एन आई. और यस, एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्फिडेंट. एंड व्हाट आई मीन इज लाइक आप बहुत ज्यादा कोई भी काम करने में आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, आप शेकी नहीं रहते, डायनामिक नहीं रहते, करूं नहीं करूं, होता कि नहीं होता कि, बट यू आर कॉन्फिडेंट, नहीं होगा, दिस वर्क फॉर मी, आई एम श्योर, आई एम डेड श्योर दिस विल वर्क फॉर मी. इफ यू आर ऑसम, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दोज. एंड दोज हु आर नॉट, आप भी बन सकते हैं. दैट्स अ गुड न्यूज. यू आर नॉट बॉर्न हार्ड वायर्ड. ये वायरिंग चेंज हो सकती है, इट कैन बी रीवायर्ड. जो बात में स्टार्टिंग में बताया ना आपको, कैलकुलेटेड रिस्क टेकर, वो पॉइंट्स आप करें, इट विल हेल्प यू अ लॉट. This is a quote, a quotation है कि doubt kills more dreams than failure ever will. Doubt is actually the start of failure. और एक quotation है, जब आप डाउट करते हैं अपने कैपेबिलिटीज पर, अपने सलाहियतों पर, आउटकम्स पर, when you doubt, there's high chance you'll fail actually. You get what you think you will get. सुनिए कि भाई ये नहीं वर्कआउट होगा, it will not work out. I will give up too soon. ऑलराइट. अच्छा, तो अच्छा होगा क्या? बिजनेस में बहुत से लोग राय मशवरे देते जाएंगे, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये काम करेगा, ये नहीं करेगा, इसकी चीज का बिजनेस करो, कोरोना चल रहा है, वो बिजनेस करो. आई मीन 10 किस्म के जो है ना लोग एडवाइस देते जाएंगे. लेकिन आपको अपना डिसीजन लेना होगा, एंड यू हैव टू बी फर्म ऑन इट.
अच्छा, दिस डजंट मीन कि ना भाई दूसरों से मशवरा ना ले, मशवरा ले। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कुरान में आले इमरान में, वशाविरहुम फिल अम्र, कि मशवरा लो लोगों से। उसके बाद फिर फइज़ा अज़मत फतवक्कल अलल्लाह, और उसके बाद जब फैसला अज़म कर लेते हैं फिर अल्लाह पर भरोसा करना है, देन बी फर्म ऑन इट। तो ये चीज बहुत जरूरी है बिजनेस। 10 लोग फ्री के जो ना 10 मशवरे देंगे, घर वाले देंगे, रिश्तेदार देंगे, दोस्त अहबाब देंगे, करीबी जो है जो लोग हैं वो लोग देंगे, वो लोग कंफ्यूज करेंगे, ये आते रहेंगे मशवरे, लेकिन यू हैव टू बी फर्म, मेक द राइट डिसीजन, इस्तिखारा करें, अल्लाह ताला जो है उसमें आपकी रहनुमाई करेगा इंशाल्लाह। और हाँ, इस तरीके से मैं आपको शेयर करूं कि जब हम लोग स्टार्ट किए थे बिजनेस एक्चुअली 2007, एंड देन फाइनली 2010 आई जम्प फुल टाइम। We had a lot of challenges कि जो है we started with like you know online marketing, AdSense and website development, अला बला। वेबसाइट डेवलपमेंट का हमारा कुछ जबरदस्त चल रहा था, मतलब it had a good start, but people told us literally, I mean, I remember very vividly, one of my close friend, he told me, मन्नान, वेब डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं लोग, एवरी टॉम डिक एंड हैरी वेब डेवलपमेंट कर रहा, वेब डेवलपमेंट में अब मजा नहीं रहा, वो चीज पुरानी हो गई, उसमें पैसा नहीं है, इट्स ओवर नाउ, इट्स ओल्ड स्कूल, आई मीन खत्म हो गया यार, उसमें तुम क्या कर, हर बच्चा बच्चा गली गली में जो है ना बच्चे वेबसाइट बना रहे, तो पैसा भी नहीं है, 2-4 हजार में वेबसाइट बना रहे। दैट वाज रियली कंफ्यूजिंग, यू नो। सही यार, मतलब बात तो बोल रहे सही दिख रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टिल डिसाइडेड कि नहीं, वी हैव द मार्केट। हाँ ठीक है, हर कोई डेवलप कर रहा है, लेकिन स्टिल उसमें जो है ना क्वालिटी डेवलप, जैसा बोलते थे कि पहले हम कोट सुनते थे वो कि सिविल इंजीनियर भूखा नहीं जाता, क्यों बोलते, कंटिन्यूस घर नए बनते रहते हैं। उसी तरीके से वेब डेवलपमेंट में भी ऐसी है कि नए बिजनेसेस आते ही रहते हैं, और नए वेबसाइट्स बनाए नहीं, कंटिन्यूअसली न्यू बिजनेसेस, दे नीड द वेबसाइट्स एंड द वर्ल्ड इज गोइंग डिजिटल। तो उस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फॉर्म ऑन इट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक मिन अल्लाह, been almost more than 10 years now. We have 500 plus global clients. We have clients from US, UK, Saudi, Dubai, Bahrain, Qatar, and throughout India. Big brands like Airtel, Ericsson, King Saud University, Indian Embassy, and Alhamdulillah, you name it. So I mean, that is how it is. You have to be firm on it. और उसके ऊपर जो ना फुल फोकस, फुल एफर्ट्स के साथ, having the trust that this will work and will give results. It will take time, but it will give results. वो conviction आपको होना जरूरी है. So, all right, the quick action item now is uh, think confidently, act confidently, dress confidently, walk confidently, talk confidently. Because this is the confidence जो आपको अपने business में काम आने वाला है. All right. So you're talking about self confidence. ये कौन से नंबर का पॉइंट है? I have reversed the question now. All right, Taha, awesome. Huh? That is the 5th point. Great, great. चले आगे बढ़ते हैं. So, all right, let's have any questions over here till now. By the way, कितना टाइम है हमारे पास? Organizers, Faisal bhai, brother Faisal, how much time do we have? Okay, I think I have a lot of time. Not mentioning. Chale. So, any questions over here till now? How is it going? Or I mean, is everyone benefiting? फायदा हो रहा है? Are we going the right direction? Is this what you want? Is it making sense? ठीक है ना? Okay. Unknown person. Yes. Unknown person है. Yes कहते हैं. Okay. Obviously. Okay. Alhamdulillah. चले. Good. 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 तो excellent बोले सैफ. Very good. Good खिरत by the way. चले. So, but I didn't get the time. Ikhwan. Hi, guys. Is it another 20 minutes or 15 minutes or 30 minutes? आगे बढ़ते हैं, आप लोग डालते रहिए आंसर. So the next point 20, is 20 minutes. All right, thank you, Faisal. Focus. Concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus, said by Alexander Graham Bell.
जब सूरज की रोशनी, उसकी एनर्जी को फोकस किया जाता है यूजिंग ना मैग्नीफाइंग ग्लास, पेपर जल जाता है, इट स्टार्ट्स बर्निंग। दैट इज द पावर ऑफ फोकसिंग द एनर्जी। और वही अगर फोकस नहीं रहा तो मतलब घंटों घंटों जो है गर्म होकर हीट होगा, लेकिन इट विल नॉट बर्न। Bruce Lee says the successful warrior is an average man. Write this down. Is an average man with laser sharp focus. Laser sharp focus. फोकस होना पड़ता है। फोकस जब आप करते हैं, यू स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स। अदरवाइज जैसा बात है कि आप इधर से उधर, उधर से इधर आप जंप करते जाना रहेंगे। लोगों के मशवरे लें, बट डू व्हाट यू आर फोकस्ड एंड व्हाट यू फील यू विल गेट रिजल्ट्स। बिजनेस के स्टार्ट में ऐसे ही रहता, यू स्टार्ट फीलिंग उधर भी अपॉर्चुनिटी, इधर भी अपॉर्चुनिटी है, वो करे तो पैसा मिलेगा, ये करे तो पैसा मिलेगा, आप करते जाएंगे। और आईटी लाइन में वैसे ही था, व्हेन वी स्टार्ट इन 2007 8 9 10, तो अरे ये बहुत अच्छा दिख रहा है, दिस इज वेरी लुक्रेटिव, स्टूडेंट के उसमें चले जाएंगे, ऑनलाइन के उसमें चले जाएंगे, ये करेंगे। एंड वी क्रिएटेड लाइक 12 to 14 वेबसाइट, लिटरली डोमेन्स रजिस्टर कर लिए और एवरीथिंग वाज डन, वेबसाइट बना लिए, बट नन ऑफ द वेबसाइट वाज गिविंग इवन अ पेनी। And then finally we realized that this is not how it will work. और 10 वेबसाइट को बंद करके ओनली 2 पे जो ना फोकस किया। Guess what? अल्हम्दुलिल्लाह we started making in lakhs. लाखों की जो ना इनकम 1-2 वेबसाइट से आने लगी। That is the power of focus. When you start the business, एक पर्टिकुलर से स्टार्ट करना है और फोकस्ड काम उस पे करना है। ग्रेजुअली कैसा डाइवर्सिफाई करना है दूसरे समझाना है, मैं आपको बताऊंगा आपको इंशाल्लाह, लेकिन स्टार्ट करना है एक ही उससे और उसमें फोकस करना है। देयर आर पीपल जो देखते हैं कि प्रेजेंट बिजनेस का भी उतना खास सेटअप नहीं रहता, लेकिन जो ना दूसरे में जंप करने आते हैं। लास्ट ईयर की बात है, देयर इज एन आईटी कंपनी, यू नो अबाउट सम पीपल, they run the business in Saudi. Seeing the market, अरे भाई यू नो आईटी कंपनी चला रहे हैं, लेकिन मार्केट देखे भाई, कोविड चल रहा है, मास्क का बहुत सेल कर रहा है, जुनून है, हर कोई मास्क खरीद रहा है, एक एक दो दो तीन तीन किस्म के, कलर के, यू नो कपड़ों के, इसके उसके। दे स्टार्टेड डूइंग बिजनेस इन मास। आई मीन इज इट मेकिंग सेंस? ना कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस है, ना सप्लीमेंट्री बिजनेस है, टोटली डाइवर्स बिजनेस है, समथिंग विच इज अनरिलेटेड। वो प्रोडक्ट के बारे में मालूम नहीं है, पहले वो जो है ना इंपोर्ट करना है चाइना से, फिर उसके बाद जो है उस मार्केट होना है, यू वांट टू सेल इट, नॉट पॉसिबल। आई मीन इट जस्ट डजंट वर्क दैट वे। गेस व्हाट हैपेंड? नो प्रॉफिट्स। हालत तो ये हो गई थी कि वो पूरे मास वैसे ही पड़े हुए थे, एंड कोविड यू नो लाइक सेल उसका जो है ना डाउन हो गया था पूरा। जस्ट बाय चांस फाइनली दे कुड सेल द एग्जिस्टिंग मास एंड ब्रेक इवन हो गया, जितना इन्वेस्ट करे थे उतना पैसा वापस आ गया, विद सम एक्सपीरियंस एंड सम टेंशन। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस में हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन ग्रेजुअली हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन यू नो अपसेल हो सकता है, क्रॉस सेल हो सकता है, लेकिन टोटली अननोन बिजनेस में वेरी रेयर, इट्स वेरी रेयर, इट्स वेरी चैलेंजिंग, इट्स एब्सोल्युटली you know I would say not even high risk but kind of stupidity. All right, so the action item is be focused on whatever you're doing. जब तक एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस वो नहीं बनता, उसी पे जो ना आपको फोकस करना है। ऑलराइट, सो द 6th पॉइंट इज फोकस। मैं ही बोल दे रहा हूं इसको। ऑलराइट, वी गो टू द 7th पॉइंट, दैट इज एथिक्स। एथिक्स, या जो ना अगर हम इस्लामिक टर्म्स में बोलेंगे, हलाल रहे वो, ये शरिया कंप्लायंट रहे, ये शरीयत के जो ना दायरे में रहे, ये जो ना हराम काम नहीं हो उसमें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस में आपको आते ही रहेंगे इस किस्म की आजमाइश आते रहेगी। एक कोटेशन है सीएस लुइस का, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज as useful as it looks, as useful as it is, seems rather to make a man a more clever devil. होशियार शैतान है भैया, मैं बोले सा। Never ever do unethical business. There are a lot of stories, but we don't have time. मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ बस। अनएथिकल बिजनेस आप करेंगे, उससे आपको बरकत चली जाएगी, और आप हमेशा जो है खौफ में रहेंगे, कानून के जो है डर में रहेंगे, यू विल लूज योर कॉन्फिडेंस, और अल्टीमेटली विल हैव टू पे अ रियली हेवी प्राइस, विल हैव टू पे अ रियली हेवी प्राइस। तो everybody has heard about this company known as Satyam. Yes,
सत्यम के बारे में, मे बी द वेरी यंग गाइस, बच्चों को नहीं मालूम होगा, बट पीपल हु आर मे बी इन द 30s and 40s यू नो वेरी वेल सत्यम कंप्यूटर्स। 2008 में सत्यम का $2 billion का रेवेन्यू था। they had 52,000 people, IT professionals, global, and they were listed 185 in Fortune 500 companies globally. कितना? 185 in Fortune 500 companies में। और उनका जो फाउंडर था रामलिंगा राजू, what he did was एक छोटी सी जो है ना उसमें एक बदमाशी की। he wrote something lie to kind of inflate their business so that shares का रेट जो है ना कुछ बढ़े। I'm telling you in very layman terms. And to hide that lie, वो झूठ से बचने के लिए he had to tell more lies and more lies and more lies. ये बढ़ते 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 they ended up in at that time a fraud of 7,000 crores, not a small figure. 7,000 crore का जो ना fraud हो गया। And finally what happened? The company closed down. इतनी मेहनत से, इतनी जबरदस्त, इतनी बेहतरीन कंपनी उठाया था बंदा, लेकिन हराम बिजनेस, अनएथिकल में चले गया। The company closed down. Yes, he ended up in jail. He got a heart attack. पूरी लाइफ खत्म हुई उसकी। उसके बच्चे भी जेल में चले गए। They were also partners. They were hands in gloves, doing the same thing, चोरी में उसके बच्चे भी थे, विरासत में बच्चों को वही दिया हो। That is heavy price which you pay. इतनी मेहनत से उठा के, ending up in jail, the humiliation, losing all the money. I mean, as a Muslims, ना दुनिया ना आखिरत कहीं के भी नहीं रहते। And the same thing applies what kind of business you're doing, उसमें भी जो है ना आपको ख्याल रखना है, because we realized this around 2010-11 में के हम जो जिस लैपटॉप में और जिस कंप्यूटर में अपना बिजनेस कर रहे हैं, most of the times, अल्लाह हम सबको माफ करे, अल्लाह protect us all, we use like pirated Windows, pirated MS Office, नहीं क्यों बोलते उसकी जो है ना बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। So we decided कि no, जब हम बिजनेस करें everything should be halal. अल्हम्दुलिल्लाह, there are a lot of ऑनलाइन में जैसे हमारे अपने आईटी लाइन के जो थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं वेबसाइट्स के लिए, जो टॉरेंट से वेबसाइट से डाउनलोड कर ले सकते हैं, या वन टाइम डाउनलोड करके मल्टीपल जो है यूज कर ले सकते हैं, लेकिन उसका लाइसेंस रहता है कि वन टाइम यूज। अल्हम्दुलिल्लाह, वी पेड देम लिटरली इन लैक्स। ओरिजिनल विंडोज, पेड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस, पेड वर्जन ऑफ एडोब, एवरीथिंग। नॉट नहीं भाई ये तो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा बंदा, पायरेटेड इसको। मेक इट हलाल, मेक इट एथिकल, you will be more confident. And if you don't, you may pay a heavy price. I know a company, one of our clients, उनका कॉल आया था हमको like 2 years back, and they said कि जो ना उनके ऑफिस में कोई एक बंदा pirated software जो ना यूज कर दिया without the notice of the employee, used without the notice of the owner, and that company उनके ऊपर जो ना केस डाल दी। It was some big company, I think like probably कोई accounting software था, I don't remember, maybe AutoCAD or whatever. They put a case on them कि तुमको इतने हजार जो है ना तो फाइन पे करो, या तो फिर हम तुमको जो है ना जेल में ले जाएंगे। I mean, पकड़े गए तो बहुत भारी भी पड़ता। And either case it's haram. What is haram is haram. और जो भी हराम काम करेंगे, you will face the consequences, दुनिया में भी आखिरत में भी। So keep it halal. That is what we learn. You get a lot of tests, बहुत सी आजमाइश होती है, बहुत से challenges आते हैं हमको। कई वक्त जो है ना बैंक्स के, बड़े-बड़े बैंक्स से जो है ना ऑफर्स आए कि फिर उनके आईटी सेटअप करो, और इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह विन टेकअप इंश्योरेंस कंपनी से आए, और जो है इंटरेस्ट बेस्ड कंपनी से आए, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको जो है ना रिजेक्ट कर दिए, इवन दो दे वर गुड ऑफर्स। So the action item is always be clean at heart and do ethical business. Write it down. Clean at heart and do ethical business. All right. Point number 8. अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर कर रहे हैं, and we'll go a bit fast from here. Delegation. You need to be a very good delegator. कितने लोग यहाँ पर बहुत आसानी से डेलीगेट करते हैं, दूसरों को कुछ काम डेलीगेट कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन और विदाउट गेटिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम द अदर पर्सन, जिसको आप डेलीगेट कर रहे हैं। कम ऑन, ताहा, वन, वेरी गुड। एनीवन एल्स? ब्रदर नोमान, ओके। हु एल्स? कम ऑन, यू हैव टू बी अ डेलीगेटर। रिचर्ड ब्रांसन जो मल्टीपल बिजनेसेस चलाता है, वर्जिन एयरलाइंस एंड सो मेनी, तो बंदा कहता है कि इफ यू रियली वांट टू ग्रो एज एन एंटरप्रेन्योर, यू गॉट टू लर्न टू डेलीगेट। एंड्रू कार्नेगी बहुत बड़ा बिलियनियर था,
अर्ली 19th सेंचुरी में, नो पर्सन विल मेक अ ग्रेट बिजनेस हु वांट्स टू डू इट ऑल हिमसेल्फ और गेट ऑल द क्रेडिट. यू हैव टू लर्न टू डेलीगेट. यू शुड हैव अ टीम. कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई बंदा सेल्स है, फाइनेंस में कोई है, बट दिस इज ग्रेजुअल ना. डे वन से आप पूरों को हायर करेंगे तो बिजनेस बंद करके चल जाना पड़ता. नहीं रहने भाई, वो मन्नान साहब बोले थे डेलीगेट करना, मैं डेलीगेट करने जो है ना 10 लोगों को हायर करा ना. इट हैज टू बी वेरी ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस. डे वन से नहीं. वंस यू स्टार्ट लाइक एक लेवल पे आगे, इज वेल सेटल्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड, हायर अ पर्सन, ट्रेन हिम एंड देन ग्रेजुअली स्टार्ट डेलीगेटिंग. नॉट फ्रॉम डे वन. डे वन में आपको ही हर काम करना है. यस, वी हैव डन दैट इन आवर ऑफिस. जब स्टार्ट हमारा बिजनेस में शुरुआत की, खुद ही जो है पानी भी खुद ही लाना है, झाड़ू भी मारना है, लिटरली यस, झाड़ू भी मारना है, सब काम, ऑफिस खुद ही खोलना है, ऑफिस बंद भी खुद ही को करना है, तो आपको करना रहता. लाइट की बिल भी पे करना है, फोन की बिल भी पे करना है. बट देन ग्रेजुअली वंस यू ग्रो, फिर आप डेलीगेट कर सकते हैं. टीम को जो है ना, एम्प्लॉइज की सैलरी ट्रांसफर करने वाला दूसरा बंदा होगा, ऑफिस के एक्सपेंसेस देखने वाला कोई जो है ना आपका फाइनेंस चार्ज होगा, इनवॉइसेस कलेक्ट करने के लिए आपको कोई सेल्स की टीम का बंदा हो सकता है. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. सो व्हाट्स अप पॉइंट नंबर 8 क्विकली. पॉइंट नंबर 8 और वाज द 8 क्वालिटी? डेलीगेशन. वेरी गुड. बहुत ही गौर से सुन रहे हैं आप, माशाल्लाह. पॉइंट नंबर 9 इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अक्सर लोग क्या करते हैं, कंपनी के जो रिसोर्सेस हैं, उसका लैपटॉप है, मोबाइल है, टेबल, चेयर, फर्नीचर, इसको हम समझते हैं बड़े रिसोर्सेस है. द बिगेस्ट रिसोर्स इज ह्यूमन रिसोर्स. ये ह्यूमन रिसोर्स को सही रिसोर्स या टैलेंट को हायर करना, इंसेंटिवाइज करना, मोटिवेट करना, मोटिवेटेड रखना उनको, उनकी हैप्पीनेस का जो ख्याल रखना, सही टाइम पे उनकी सैलरीज जो है देना, और एज अ टीम जो है ना साइनर्जाइज होकर काम करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज. लेकिन ये इसको जो है ना लोग मिस करते हैं. ह्यूमन रिसोर्स, राइट इट डाउन, इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ योर कंपनी. इज द बिगेस्ट एसेट. इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है. रिचर्ड ब्रांसन कहता है, इसको मैं मोटे अंदाज में बताऊं इन लेमन टर्म्स, कि एम्प्लॉय को यानी इतना ट्रेन करो, इतनी सलाहियत दो कि वो आपसे जबरदस्त जो है ना काम करे, और उसको जो है ना इतना ज्यादा प्यार दो कि वो आपकी कंपनी छोड़ के नहीं जाए. That is where you are having the right kind of resource. And remember, the best resource has to be groomed in the company itself. आप हायर भी करेंगे, बहुत टैलेंटेड बंदा हो सकता है, लेकिन कंपनी के माहौल में उसको ढलाना होगा. That will be your responsibility. Don't expect to have a perfect employee from day one. Otherwise you'll get disappointed. और फिर आप फायर करते रहेंगे बंदों को. Hire the right resource, groom them, develop them into the right talent. So that's the 9th point. We'll go to the 10th one. Be innovative and creative. Innovation, creativity, और उसके साथ साथ फिर जो बात स्टार्टिंग में आई थी, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन, ये उसके ऑफशूट है इनोवेशन और क्रिएटिविटी के. एवरीबडी नोज, और मे बी सम पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल नो द स्टोरी ऑफ नोकिया. नोकिया का क्या हुआ था मामला, याद है आपको? नोकिया वाज, व्हाट वाज नोकिया बाय द वे? आई मीन नोकिया नहीं किया उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे. व्हाट वाज नोकिया? नोकिया वाज द बिगेस्ट कंपनी जो मोबाइल्स की, जो आजकल जो ना देखते सैमसंग है या फिर आपका जो ना आईफोन है, तो उससे पहले जो नोकिया था. और सडन उसका जो ऐसा डाउनफॉल हुआ, लिटरली उनका सीईओ जो ना रोया, आंसू बहा के रोया, और ये अल्फाज बोला, वी डिड नथिंग रॉन्ग. ये बोला उन्हें, आप सर्च करके देखिए गूगल में. व्हाट रॉन्ग दे डिड वाज दे डिडंट इनोवेट. उन्होंने हालात के साथ अपने आप को अपग्रेड ही नहीं करे. पूरी दुनिया जो है टच स्क्रीन पर जा रही थी, और ये लोग का जो ना वो अभी भी वो हार्ड बटन, जो पहले वाले हार्ड बटन वही थे. ही डिडंट इनोवेट. क्रिएटिविटी नहीं थी उनके अंदर, नई चीजों को लाई नहीं, बस पुराने उसको जो है टेक्नोलॉजी को बरकरार रखे हुए. इनोवेट नहीं करे और जो है नई चीजों को नहीं लाए. एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड वाज दे डाइड. मार्केट से जो ना बाहर. अब उसके बाद कितना कोशिश करे रिवाइवल की, बट स्टिल दे आर आउट ऑफ द पिक्चर. सो यू हैव टू इनोवेट, यू हैव टू बी क्रिएटिव. Either you're growing or you're dying. यानी बिजनेस में कैसा है, कंटिन्यूस इनोवेशन करना ही आपको. योर बिजनेस either grows or it goes down.
इट एप्रिशिएट्स और डेप्रिशिएट्स, कांस्टेंट नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। अब बोलेंगे नहीं हमारा बिजनेस कांस्टेंट है, नॉट पॉसिबल। इट हैज टू इनोवेट, इट हैज टू ग्रो, एल्स इट विल डाई। तो ये आपको जहन में रखना है। और ये चीज हम फेस भी की इनिशियल में, जैसा आपको बात बताया कि हमारे पास जब वो 2 वेबसाइट्स थे, तो ग्रेजुअली हुआ कि एक वेबसाइट जो ना उसमें से विद टाइम खत्म हो गया, तो एक ही वेबसाइट पे हमारी पूरी इनकम सोर्स जो है ना बची हुई थी। और वो वेबसाइट हमें लाइक वेरी हैप्पी, अरे इससे जो ना पूरी इनकम हमारी वन फाइन डे। एंड वो वेबसाइट जो हमारा मोनेटाइजेशन था, दैट वाज थ्रू एडसेंस। इफ एनीबडी नोज एडसेंस, जस्ट राइट एन आई। तो एडसेंस इज बेसिकली वेबसाइट पे गूगल के एडवर्टाइजमेंट डालते थे और उससे हमको जो ना इनकम आती थी, हमें घर पे चेक आता था। एंड वी वर लाइक वेरी हैप्पी, सीधा घर पे चेक आ रहा है 50,000, 60,000, 1 लाख। वी वर सो हैप्पी। उस जमाने में डॉट कॉम का द मिड ऑफ द डॉट कॉम बूम था, बहुत जबरदस्त दिखता था, घर पे जो है ना चेक आ रहा है, वेरी हैप्पी। वन फाइन डे गूगल की तरफ से एक ईमेल आया कि ये वेबसाइट पे से एड्स आर बैन, नो रीजन गिवन। आज तक भी कोई रीजन नहीं मिला हमको। एंड वी वर लाइक शॉक्ड, यार ये हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम इज गॉन नाउ। That is the time we realized कि don't put all the eggs in one basket. यानी आपके इनकम सोर्स एक ही उसमें नहीं रहना चाहिए। That is where we are talking about diversification now. कि जब आपका एक बिजनेस अच्छा सेट हो जाता है, ग्रेजुअली जो ना आप डाइवर्सिफाई करते जाए, नए नए जो ना सिमिलर बिजनेसेस में और कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस में, क्रॉस सेलिंग में आप आते जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली, जैसे मैं आपको बताया कि वी आर लाइक 500 क्लाइंट्स वेब डेवलपमेंट के, उसके साथ साथ वी वेंट इनटू एक तो हम लोग अपने ऑनलाइन एडसेंस के थे, उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह वी वेंट इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन ओन पोर्टल्स, उसके बाद फिर जो है ना मोनेटाइजिंग थ्रू एड्स, लोकल एड्स, नॉट ओनली थ्रू एडवर्ड्स और एडसेंस। उसके बाद फिर जो है ना क्रिएटिंग एप्स अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आउटसोर्सिंग, giving resource person for businesses, and alhamdulillah gradually into real estate, alhamdulillah into rental properties, alhamdulillah. And alhamdulillah in 2015 uh, I started alhamdulillah went into life coaching, motivation and trainings. मेरे अपने own online courses हैं and work as a corporate trainer and motivational speaker. Alhamdulillah I travel to different countries also and even in India. तो उस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन आपको करना है, बट दैट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। डे वन से आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। एक बिजनेस को सेट करना है, स्टेबलाइज करना है और उसके बाद डेलीगेट करना है सही रिसोर्स को, ह्यूमन रिसोर्स को रख के, फिर बर्ड्स आई व्यू से वो बिजनेस को देखते हुए यू स्टार्ट अनदर बिजनेस। फिर उसी को ये सेम प्रोसेस से गुजार के फिर वहां पर जो ना और एक स्ट्रॉन्ग रिसोर्स को आप रख देंगे, उसको ग्रूम करेंगे, फिर वहां पर बर्ड्स आई व्यू रखेंगे, फिर then you will start another one. That is how the diversification works. Day one से नहीं होता। And when you have eggs in different baskets, एक अंडा फूटा, आपका दूसरा अंडा दूसरे बास्केट से आपके पास। No, this is how it works. So diversification, it comes after innovation and creativity. Point number 11, be a continuous knowledge seeker. Continuous knowledge seeker आपको होना ही है। How many people over here, my quick question is, have gone for paid trainings for your self development? Right, and I paid trainings for your self development. अभी ये भी फ्री का है बाय द वे, हाँ IMA वाले कर रहे हैं, आप बोले चलो ज्वाइन कर लो, फोगट का है क्या, जेब से जा रहा नहीं। ओके तनवीर भाई वेरी गुड, ओके वेरी गुड, फैसल भाई नाइस। हमारे पास एक इंडियन माइंडसेट, देसी माइंडसेट क्या है, होटल में जाएंगे हजारों रुपए उड़ा देंगे, 2-3 हजार की जो है ना, 2-3 हजार रुपए की कोई चीज नहीं बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा होता है 2-3 हजार रुपए का ओट लिंक कर लेंगे, खा लेंगे, पिज्जा में जाएंगे, पिज्जा हट, ये वो। ट्रेनिंग की बात आती भाई, 500 रुपए की ट्रेनिंग है, अम्मा 500 रुपए ले रहा हूँ नहीं करता। एंड इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, हाउ विल यू ग्रूम योरसेल्फ? यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। जो चीज में आप इन्वेस्ट करेंगे उसी की वैल्यू बढ़ेगी। जमीन में इन्वेस्ट करेंगे, जमीन की वैल्यू बढ़ेगी। बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस बेहतर होगा। पर्सनालिटी में इन्वेस्ट करेंगे, यू विल बिकम अ मोर रिफाइंड पर्सनालिटी, यू विल बिकम अ सॉट आफ्टर स्पीकर, यू विल डेवलप। आपको जो है ना लोग चाहेंगे कि लोग आपसे जो है आपकी कुछ बात सुने, आपकी जो है नॉलेज सुने। पीपल विल बी विलिंग पे यू फॉर जस्ट फॉर योर वर्ड्स, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट इज हाउ इट इज। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वंस वी केम इनटू द बिजनेस, हम
कंटिन्यूसली, इवन हमारी टीम में भी, एम्प्लॉयज को भी कंटिन्यूस, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस दे डू ट्रेनिंग्स, भले आधा घंटा, भले 1 घंटा या 2 घंटे, एवरी डे, डेली बेसिस पे हमारी टीम है ना ट्रेनिंग लेती है. एंड इवन अस, माई सेल्फ एंड हमजा आल्सो, अल्हम्दुलिल्लाह, कंटिन्यूस वे इनटू द ट्रेनिंग्स. I have done like for say lot of trainings, lakhs of rupees. Just Dubai के हमें 10 दिन की जो ट्रेनिंग, that was like 3 lakh rupees, 3 lakh rupees only for just 10 days. यानी एक दिन के 30,000 rupees. आप सोचिए, my engineering was just 2 lakh rupees by the way for 4 years. यानी जो लेवल का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो रिटर्न्स जो है ना आपको मिलते हैं उसमें. अल्हम्दुलिल्लाह गॉट ट्रेन अंडर जो है ना टोनी रॉबिन्स, जो वर्ल्ड का नंबर 1 है, जैसे मैं आपको बताया, वेंट टू सिंगापुर फॉर दैट ट्रेनिंग. कई मुकाम, इवन नाउ ऑन अ डेली बेसिस, एवरी डे आई एम डूइंग ट्रेनिंग, एवरी डे मैं आपको बोल रहा हूँ, आई टेक ट्रेनिंग्स. आई हैव ऑनलाइन कोर्सेस है जो है मैं डेली बेसिस पे करता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह एवरी डे डेली बेसिस पे आई एम रीडिंग अ बुक, नॉट अ कंप्लीट बुक ऑफ कोर्स, बट पार्ट ऑफ द बुक. यानी जितना आप अपने अंदर इन्वेस्ट करेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, उतना आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी. उतना जितना आपका माइंडसेट बढ़ेगा, जितना आपकी सलाहियत बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, उतना आपका बिजनेस जो है ना ऊपर उठेगा. यू हैव टू बिकम द एजेंट फॉर द चेंज. ऑलराइट, सो इस तरीके से दीज आर द एक्शन आइटम्स व्हिच यू गेट, कि कंटिन्यूअस बेसिस पे बिकम अ नॉलेज सीकर एंड सेल्फ डेवलपमेंट आपको करना है. एवरी 6 मंथ्स में राइट इट डाउन, एवरी 6 मंथ्स में गो फॉर एट लीस्ट इन 6 मंथ्स गो फॉर अ पेड ट्रेनिंग. यस, गो फॉर अ पेड ट्रेनिंग. पैसे देके जो है ना सीखने जाओ, ऑफलाइन ट्रेनिंग, नॉट ऑनलाइन. So we come to the last point, vision. Have a vision and a business blueprint. Mind में business blueprint होना चाहिए. Because if you don't have a plan, if you fail to plan, you plan to fail. Plan होना जरूरी है. If you aim for the stars, you land on the moon. Plan होना जरूरी है. If you think you can, you'll get to know ways how you can. If you think you can't, you'll get to know ways why it's not possible. Henry Ford says, if you think you can or if you think you can't, you're right. It all starts with the mind. आप समझते हैं आप बिजनेस कर सकते हैं, yes, you start creating the plan, you start working on it, you start taking action, you start getting results. What the mind can visualize, it can achieve. लेकिन आप बोलेंगे नहीं, पॉसिबल नहीं है, डायलेमा में है, शेकी है, होता कि नहीं होता कि, it will never work. Doubt is a start of failure. जितना बड़ा आपका विजन होगा, उतने ज्यादा, उतने बड़े जो ना आपके रिजल्ट्स होंगे, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा. इट ऑल स्टार्ट्स ओवर हियर. यानी किसी का बहुत बड़ा बिजनेस देख रहे हैं, आप सोचेंगे ही हैड अ ग्रेट विजन. वो विजन का एग्जीक्यूशन है जो आपको जो है नजर आ रहा है. सो द एक्शन आइटम फॉर यू ऑल इज, क्रिएट अ विजन, राइट डाउन योर विजन फॉर योर बिजनेस. आप बोलेंगे इट लुक्स अनप्रैक्टिकल, मे बी नाउ इट लुक्स अनथिंकेबल, अनप्रैक्टिकल, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो रियलिटी बनेगी. When I went into life coaching and motivational speaking, corporate training was a dream for me, like dream come true, like impossible. Corporate training करना तो चाहता हूँ, लेकिन नहीं यार, corporate training कैसे. But now, alhamdulillah, several companies training देते हुए. I had an opportunity last year, 2020, in Saudi Arabia. 50, CEOs, CFOs के लिए मैं 7-star होटल में alhamdulillah corporate training थी. You start working on your vision, अल्लाह ताला जो है ना राहें खोलना शुरू करेगा आपके लिए. हदीस खुशी में आता है ना, इन द ज़न्न अब्दी भी, मैं बंदे के जो ना गुमान के साथ हूँ. What vision you have, what you think is possible, अल्लाह ताला वैसे राहें आपके लिए खोलना शुरू करते हैं. Finally, one last bonus point is, 12 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए. The bonus point is give back to the community. जब अल्लाह ताला आपको सलाहियत देता, पैसा देता, कारोबार देता, give back to the community. क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारुल आखिरह, जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है, पैसा है, सलाहियत है, वक्त है, कारोबार है, उससे जो है ना अपनी आखिरत बनाओ. वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, लेकिन दुनिया के हिस्से को मत भूलो. बिजनेस करो, पैसे कमाओ, अपने ऊपर खर्च करो, अच्छी गाड़ी खरीदो, शुक्रगुजार हो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, शुक्रगुजार हो, तकब्बुर मत करो, गुरूर मत करो, ग्रेटिट्यूड करो. और फिर जब एक्सेस पैसा आ जाता है, जब एक्सेस आपके पास जो है ना, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगता है, उसके बाद क्या करना है, वो अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, लोगों के ऊपर एहसान करो जैसे अल्लाह ने आपके ऊपर एहसान किया है. गिव बैक टू द कम्युनिटी, एंड यू नो व्हाट, व्हेन यू गिव बैक टू द कम्युनिटी यू गेट मोर. सुभान अल्लाह. यस, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव सीन दिस इन माय लाइफ. जब आप जो है अंडर प्रिविलेज्ड
या कोई एनजीओ है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई दीनी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जब सपोर्ट करते हैं, ये कम उसमें जो ना काम करते हैं, प्रो बोनो कर देते हैं, ये फ्री में काम कर देते हैं, कुछ और सोर्स से जो ना आपको बिजनेस मिल जाता है। अल्लाह की राह में जब आप निकल जाते हैं, तो फिर जो ना कोई और सोर्स से आपको जो ना फिर वहां से बिजनेस भी मिलता है। मेनी टाइम्स आई गो एज अ स्पीकर एंड आई डोंट चार्ज, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वहां से जो है ना कुछ बिजनेस मिल जाता है। वेरी रिसेंटली लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं, एक इवेंट एज अ रिसोर्स पर्सन, एज अ स्पीकर अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे 3 तकरीर थे, ऑल वर फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह पर डे पर टॉक का मेरा चार्ज अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 रुपीज मिनिमम, बट अल्हम्दुलिल्लाह दो से फ्री। मैं ये बताने का मकसद ये है कि वो काम किए, अल्लाह ताला जो है उससे बढ़ के बिजनेस जो है ना हमको दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दिस इज मिनल्लाह। डू योर बेस्ट, लीव टू अल्लाह द रेस्ट। आप करते जाओ, अल्लाह ताला जो है ना आपको देते जाएगा। अब अल्लाह के लिए नौकरी करो, यू वर्क फॉर अल्लाह, अल्लाह विल गिव योर सैलरी। सैलरी जो है ना अल्लाह ताला आपकी दे देंगे। सो व्हेन यू हैव एक्सेस, गिव बैक टू द कम्युनिटी। डोंट रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रादर रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग। ये आपके लिए एक बोनस और टेक अवे मैसेज है। विद दैट वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ 12 प्लस 1 पॉइंट, दैट इज 13 पॉइंट्स। एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड। उसको हम लेते हैं क्विकली, इफ यू हैव टाइम, 5 10 20 मिनट्स, आई डोंट नो, डिपेंडिंग ऑन फैसल एंड द ऑर्गेनाइजर्स। तो ऑलराइट, जज़ाकल्लाह खैर एवरीबॉडी फॉर योर ग्रेट एंड interesting contribution and involvement. Thank All you. right. Thank you very much. Thank you very much, Jazakallah, brother Mr. Abdullah Pannan. We are already running over time, but still, if there's any question, we can wrap it up in more 5 minutes. If anyone has questions in the audience, please ask. We have more 5 minutes. एक क्वेश्चन आया प्राइवेट में कि how do you manage reading books in your busy schedule? Yes, alhamdulillah, तौफीक मिन अल्लाह, I have a very very busy schedule. अल्हम्दुलिल्लाह के आईटी कंपनी भी है, इंडिविजुअल 1-to-1 लाइफ कोचिंग है, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंस लास्ट 25 days I'm on travel, तो ये सब चलते रहते हैं। बट यू नो यू नीड टू मेक अ प्लान, सो आई मेंटेन अ डायरी। ये मेरा डेली की जो है ये डायरी है। एवरी डे आई राइट डाउन द टास्क जो मैं उस दिन के जो है ना करने वाला हूँ, तो उसमें जो है ना बुक रीडिंग एंड ऑल दोस पॉइंट्स आर देयर कि जो जो चीजें मुझे करना है। जैसे मैं बताया, व्हेन यू राइटिंग इट डाउन, यू एक्चुअली इम्प्रिंटिंग इट इन योर माइंड। तो जब आप लिखते हैं, वो जो है ना आप आपके शेड्यूल में आ ही जाता है। एंड इट डजंट हैज टू बी परफेक्ट, यू नो, मतलब 1 घंटा ही पढ़ना जरूरी नहीं है। टाइम जिस दिन नहीं है, पढ़ो, लेकिन ओनली 5 मिनट पढ़ो, लेकिन पढ़ो। 10 मिनट पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो। यू नो, कीप अप द फ्लो। हदीस में भी आता है ना, हदीस का मफहूम है, अल्लाह को वो अमल बहुत ज्यादा पसंद है जो भले ही छोटा हो लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से हो, जो कंसिस्टेंट हो। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब एक कंसिस्टेंट हो। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। बी कंसिस्टेंट, ठीक है ना? ऑलराइट, इज इट नेसेसरी टू क्विट जॉब टू स्टार्ट विद द बिजनेस? एब्सोल्युटली नो। आजकल तो इतना आसान है कि इवन व्हेन आई स्टार्टेड 2007 की बात बोल रहा हूं मैं आपको, व्हेन वी स्टार्टेड आई वाज ऑन जॉब फॉर 3 years, मैं जॉब पे था एंड बिजनेस वाज रनिंग। तो ऑनलाइन का दौर है, यू कैन सैनर्जाइज, यू कैन कोलैबोरेट, यू कैन बी इन्वेस्टर। बिजनेस डजंट मीन कि जो ना आप हर वक्त करें। फाइनेंशियल एतबार से आप जो है बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, मे बी यू कैन बी एन एडवाइजर, आप स्लीपिंग पार्टनर हो सकते हैं, लॉट ऑफ डायनामिक्स। तो जरूरी नहीं कि जो ना आपको जॉब छोड़ना। व्हाट आई सजेस्ट इज जो है आप जॉब पे रहते हुए बिजनेस को स्टार्ट करें, और लेट इट ग्रेजुअली एक ऐसे लेवल पे जब वो आ जाएगा, देन यू कैन टेक अ बोल्ड डिसीजन, और जो है ना आप बिजनेस को छोड़ सकते हैं ना। आउटराइट चलो भाई जोश में आके एकदम, हाँ उन्होंने बोल दिए थे वो आईएमए के प्रोग्राम में, मन्नान भाई बोल दिए खलास चलो मैं तो कल से रिजाइन कर रहा हूँ और मैं जो है ना आई हैव टू बी रिस्क टेकर, बोलते आई डोंट से कि दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव, दैट्स नॉट कैलकुलेटेड रिस्क। वो हिम्मत नहीं है, वो हिमाकत है। दैट्स नॉट स्टंट, इट्स स्टुपिडिटी, यू नो। तो वो हिसाब से होना चाहिए। इट हैज टू बी वेरी बैलेंस्ड। मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ, क्विकली ऐसे क्वेश्चंस। ऑलराइट, हाँ, बाय द वे आप यू कैन चेक, मैं वेबसाइट की लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। लॉट ऑफ रिसोर्सेस, जैसे ये टॉपिक्स अभी जो बातें हैं कि यू नो फियर वगैरह के ताल्लुक से आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ये लॉट ऑफ पॉइंट्स। और आप यूट्यूब चैनल भी चेक कर सकते हैं, अब्दुल मन्नान लाइफ कोचिंग में, इसकी भी आपको जो है आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। इसमें बिजनेस के भी
कई बातें हैं इंशाल्लाह आपको मिलेंगे, लाइफ कोचिंग के भी हैं, मोटिवेशन के हैं, वो आपको मिल जा सकते हैं इंशाल्लाह। उसमें आप चैनल ब्राउज कर सकते हैं, 300+ वीडियोस है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें। और आप लोग टॉपिक्स भी अगर सजेस्ट करेंगे तो उसके रिलेटेड भी मैं जो ना वीडियोस बनाता हूँ इंशाल्लाह। और मैं एक हमारा व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट नंबर भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 9353090597। इस पे आप मैसेज करें, स्टार्ट बोल के डालिए, तो आपको जो ना हम ग्रुप में ऐड कर देंगे इंशाल्लाह, हमारे एमएलसी के ग्रुप में। तो आपको रेगुलरली जो है वीडियोस आएंगे, बिजनेस के रिलेटेड भी इंशाल्लाह उसमें पॉइंट्स मिलते रहेंगे। आप यू कैन आस्क इवन क्वेश्चंस ओवर देयर। ऑलराइट, just checking any questions जो if I have missed. What will be the impact of artificial intelligence involvement? नासिर भाई, well it's a technical question. AI का जो ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। आई वुड सजेस्ट कि हमारी कम्युनिटी के लोग इसमें जो है ना जा सकते हैं। इट्स रियली गुड थिंग, बट अगेन इट्स अ टेक्निकल पॉइंट, तो जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो ज्यादा जो है ना बेहतर बता सकते हैं। ऑलराइट, सो एनी अदर क्वेश्चन? हाउ टू फाइनलाइज वन ऑप्शन फ्रॉम डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस? यस, तो इसमें जो है यूजुअली कंफ्यूजन रहता है, जैसे मैं बात बताया ऑलरेडी कि इस्तिखारा आप करें, और उसके साथ साथ जो है आप जो मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं उसको लिखें। अक्सर वे तो लोग माइंड में रखते हैं, राइट इट डाउन, एक एक इंडिविजुअल ऑप्शंस, और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है उसको अब लिखना है। ये पर्टिकुलर काम आप करना चाहते हैं। इसके ऑप्शन ए, व्हाट आर दी प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स, प्रोज कॉन्स। ऑप्शन बी, प्रोज कॉन्स, प्रोज कॉन्स। उसके बाद फिर आपको देखना है कि इसके जो है ना प्रोज ज्यादा हैं और कॉन्स कम है। आपको खुद व्हेन यू ग्रेजुअली व्हेन यू राइट इट डाउन, आपके सबकॉन्शियस में यू विल स्टार्ट गेटिंग आंसर्स। ऑलराइट, I'm just checking up. Okay, and any other question? I think we should now wrap up the question session. The last question, one of the audience, he has asked can you repeat just now you said, I think so, is asking about if you fail to plan, you plan to fail. I think the same line is asking. But did I mention that of it? Well, I just have an interesting question. Is there any business without investment that I can start? So ये question थोड़ा पहले आया, around 10:55. So this is an interesting question basically. कि yes, IT के दौर में अगर आपका स्किल सेट है तो there is a very high probability, I mean a lot of opportunities जो आप है ना कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि जो अभी आजकल ये जो बिजनेसेस हैं, जैसे अब हमारा खुद अपना वेब डेवलपमेंट का बिजनेस है। वी स्टार्टेड जस्ट विद वन लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन, वो भी घर का इंटरनेट कनेक्शन और वन लैपटॉप, दैट्स इट, यू नो। तो उस तरीके से ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे है, यू जस्ट हैव द स्किल सेट। तो उसी तरीके से आपके पास you know you have businesses about social media है, web development है, online marketing है, and even consultation. Suppose आपके पास 5-10 साल का कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है कोई पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसमें जो है आप you can be a consultant, you know, there are a lot of opportunities for freelancers. You can give advices, आप उसमें consultant हो सकते हैं। लाइफ कोचिंग है, आप अपने अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर जो है ना you start using your skill set. स्किल सेट से जो ना आप लोगों को अपने स्किल्स, यू चार्ज बाय द आवर, बाय द डॉलर, लिटरली यस। घंटे का जो ना आप चार्ज कर सकते हैं $50, $100। हमारे कोचिंग बिजनेस में तो वैसे ही, आई मीन वी चार्ज लाइक $50 to $100 पर आवर फॉर वन सेशन, कोचिंग 1-to-1 सेशन। तो लॉट ऑफ बिजनेसेस, मतलब बहुत ही आसान है आज के दौर में तो इस तरीके से, यानी शेयरिंग योर नॉलेज, शेयरिंग योर स्किल सेट, गिविंग सर्विसेज वगैरह वगैरह। तो how to start investment in education, kind of technical, okay. Okay, ये तनवीर साहब जो पूछ रहे हैं, तो वो देखिए, आई वाज टेलिंग अबाउट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नासिर भाई जो पूछे थे, नासिर खुर्शीद भाई जो पूछे थे, इट्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यानी फ्यूचर में इसके, बल्कि अभी शुरू हो गया ऑलरेडी, ये बहुत ज्यादा जो है ना आगे जाके पकड़ने वाला है। तो हमारे कम्युनिटी के बच्चे बहुत कम हैं इसमें, एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहिए हमको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, बिग डाटा है, तो ये चीजों में जो ना हमको जाना चाहिए, उसके ताल्लुक से ट्रेनिंग्स वगैरह लेकर। व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग?
Taha sab पूछते हैं, the best way to start is with your family, friend circle, relatives. When I came into the coaching business, my first and the foremost client was my wife, then my near relatives, my brothers, my sisters, my parents, और हमारे रिश्तेदार. तो वहाँ से आपको experience भी मिलना शुरू होता है. You start getting genuine feedback, and then you can monetize inshallah. So